Hi everyone, and I welcome everyone in the complete guide video for the aspirants who are preparing for RBI Grade B examination 2025. So if you are, if you have planned to appear this year for this particular examination, then this video is going to be very helpful for you. And even if you are the one who is preparing, or even if you are the one who is planning to prepare, or appear for the 2026 as well, then again this video is going to be very helpful for all of you, because here in this particular video we'll talk about the complete syllabus and complete thing that is necessary for every aspirant to know about. So RBI grade B examination की अगर मैं बात करूँ, so हर एक चीज discuss करेंगे कि what are the perks and benefits that are provided by if you get into this particular services, क्या क्या आपको prepare करना पड़ेगा, क्या क्या syllabus रहेगा, what will be the cutoff, ठीक है, this year, and we'll analyze the trend as well. We'll see the entire syllabus and we'll see rest of the things, like each and everything that is very necessary for every aspirant to know. So starting with the perks and benefits, and this is the entire what we are going to read about. This is just an overview of the the entire video. Next we'll start with the salary and allowances, ठीक है. Even when I talk about अगर आपने decide करा ही है that you will appear this for this particular examination, so आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो idea होगा कि मेरे को क्यों इस exam के लिए जाना है, why I want to get into RBI. This should be this is the thing that should, prior to everything, this is the thing that should come in your mind. So सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखो कि why do I want to become an officer in RBI particularly. We have rest of the examinations, we have rest of the banks as well, but why RBI only? ठीक है. Now I'll discuss about the perks and benefits and salaries and allowances that RBI provides to all of you. So if I talk about the salaries, your initial gross, I would say gross monthly emoluments, if I talk about specifically about emoluments, if specifically I talk about that, so you can see the amount of number here that this much of salary is provided to you, that is near to 1.5 lakh. So this is the entire the salary structure here, which includes your DNS allowance, your local your compensatory and your house and rent and your grade allowances as well. ठीक है. So इसमें ये सारी चीजें भी include रहती हैं. For example, if I talk about expenses, other expenses than that, you have newspaper expenses, you have other expenses, you have home expenses. So वो जो है वो refund हो जाएंगे by the this particular organization. So reimbursement for expenses like your like for your vehicle maintenance, for your newspaper, for your internet, for your telephone, for your charges, for your telephone charges, for your book grants, etc. Similarly, if I talk about medical aid, festival allowances, leave travel concessions, and loan at the concessionary rates. So you see the benefit here. सैलरी सीधी सीधी बच रही है ना. जब एक्सपेंसेस सारे, जब जितने भी सारे एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर अगर आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगी, सो एक्स्ट्रा खर्चा रहा ही का है ना. if you are if you're the one of age of 23 24 अपने early 20s में, and if you get into this particular service, so you have no of you have none of the expenses. जो घर का है वो आपको RBI जो है वो provide करेगा, and that too at a very good place. Every facility will be provided to you by RBI. So this ये जो रहेगी ये तो मतलब बहुत एक I would say this is very fascinating thing that is provided by the RBI. But we'll see in the coming slides as well कि इसको earn करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. Next, if I talk about the working environment, so you can see the working environment is of course progressive in nature, since you are going to work, you're going to be an officer in RBI. So RBI in itself is a central bank and a very reputed organization. So the working environment is of course very positive in nature. They entirely focus on the open community. Okay, they entirely focus on the development. They entirely focus on the innovation skills. Similarly, 5 days working of the week is there, and fixed office hours are also there. So week के 7 दिन काम करने की जरूरत भी नहीं है. 5 दिन आप काम कर रहे हैं, 2 दिन you are getting rest, and you are getting rest of the things as well. Now if I talk about the job profile and your posting, so you can see these many are the areas where you will be allocated in जहाँ पे आपका जो posting है वो हो सकता है. ठीक है. Now if I talk about 2 years, ठीक है, जो पहले 2 साल है वो रहता है प्रोबेशन पीरियड, बट दैट इज वेरी इक्विवेलेंट टू परमानेंट वंस. ऐसा नहीं है कि कुछ आपकी स्पेसिफिकली आपको लिखा जाएगा कि दिस ऑफिसर इज इन प्रोबेशन पीरियड. नो, यू विल बी गिवन द रैंक ऑफ ऑफिसर ओनली. सो द प्रोबेशन पीरियड इज देयर, बट specifically it is not mentioned here. So probation period lies between 2 years and to 4 years here. Similarly, if I talk about the rest of the things, they contribute to the national building, ठीक है, for the nation building through wide ranges of functions. Similarly, posting can be done anywhere in the India. Generally, it is limited to the state capitals. And excellent
आई टोल्ड यू अबाउट द अकोमोडेशन फैसिलिटीज दैट दे आर एक्सीलेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सिटीज, क्योंकि जहाँ पे भी सिटीज में ये प्रमोशन मतलब जो आपको हाउस फैसिलिटीज दी जाती है, जहाँ पे आपको घर दिया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा पोर्श एरिया में दिया जाता है. नाउ हाउ कैन यू गेट दीज फैसिलिटीज, कितनी स्टेजेस पार करनी पड़ेगी मैम, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में सारी जो फैसिलिटीज हैं वो मैं अवेल कर सकती हूँ. सो बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 3 ऑफ द स्टेजेस हियर. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, सो पहला आपको फेज 1 के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा फेज 2 के लिए, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर व्हाट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ फॉर फेज 3 दैट इज ऑफ योर इंटरव्यू स्टेज. पहली स्टेज आपकी 200 मार्क्स की रहेगी, दूसरी स्टेज आपकी रहेगी 300 मार्क्स की, थर्ड स्टेज विच इज ऑफ योर इंटरव्यू स्टेज दैट विल कंटेन योर 75 मार्क्स. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न. सो अगर मैं फेज 1 की बात करूँ तो आपके पास 4 यहाँ पे चीजें रहेंगी. फर्स्ट इज योर रीजनिंग, नेक्स्ट इज योर जनरल अवेयरनेस, थर्ड इज योर जनरल aptitude that I have just discussed, your quantitative aptitude and your English. Next, reasoning, general awareness, English, and your quantitative aptitude. We have seen that 4 bifurcations are there. Now we'll see one by one कि कितने questions आते हैं, and always remember the marks you get is equivalent here. ठीक है, so the questions you get here is 60 in reasoning, and equivalent marks are there, that is 70, that is 60 only. If I talk about particular time, so you can see 45 minutes are allocated here, 45 minutes you are given with, and you have to complete your paper in this particular period of time. Similarly 80 marks किसके लिए हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए हैं, मार्क्स भी इक्विवेलेंट है, 25 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे. 30 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे, 30 मार्क्स ही यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, और 25 मिनट आपको इसको करने अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सो 30 नंबर का या फिर 30 क्वेश्चन जो है इसमें दिए जाएंगे, 30 मार्क्स ही आपको क्या करने हैं, 30 मार्क्स ही आपको यहाँ पे जो इक्विवेलेंट मार्क्स है दैट इज इक्विवेलेंट टू 30, and again you will be given 25 of minutes. So if I talk about total marks, you can see 200 questions will be there, which will will account for 200 of marks, and similarly you will be provided with 120 minutes. Now we'll see about the exam 2 पैटर्न. ठीक है, अब एग्जाम जो हमारा जो फेज 2 है वो कैसे होता है. सो बेसिकली आपके पास 3 यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो रहते हैं. सबसे पहले यू हैव ईएसआई, नेक्स्ट यू हैव इंग्लिश, एंड नेक्स्ट यू हैव फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. ठीक है, ईएसआई में क्या होगा कि आपके इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज होंगे. सिमिलरली यू हैव इंग्लिश एज वेल, एंड नेक्स्ट यू हैव फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. ठीक है, ईएसआई की बात करूँ, सो यू हैव 50% ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड 50% ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन. ठीक है, टाइम की बात करूँ तो 30 मिनट आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, एंड 90 मिनट आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए, सिंस यू हैव टू राइट आंसर. ठीक है, एंड मार्क्स भी अलग अलग है, अकॉर्डिंगली जो आपकी वर्ड लिमिट है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, सो इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव टाइप, सो आपको 30 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, प्लस 4 क्वेश्चंस जो है 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. किसमें, डिस्क्रिप्टिव टाइप में. यू आर गिवन विद 6 ऑफ द क्वेश्चंस, बट यू हैव टू अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ देम ओनली. एंड 15 मार्कर के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 मार्कर के कितने रहेंगे, 2 क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट मार्क्स, सो 100 मार्क्स जो है ये दिस इज ऑफ 100 मार्क्स, 50 प्लस 50 ऑफ ऑब्जेक्टिव, 50 प्लस 50 ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश 1, सो 90 मिनट्स जो है आपको दिए जाते हैं ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए. 3 यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं. इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ मार्क्स, that is again 100 only. Similarly if I talk about finance and management, so you can see again bifurcation of 50-50 is there. 50% आपका objective type रहेगा, and 50% जो है आपका descriptive type रहेगा. ठीक है, again जो हमारा टाइम लिमिट है दैट इज अगेन सेम, 30 मिनट्स आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हियर, सो 30 एमसीक्यूज विल बी देयर, एंड अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 2 जो हैं वो आपके रहेंगे हमारे 15 मार्कर, एंड 2 रहेंगे आपके 10 मार्कर. इट मीन्स आपको कितना बनाएगा, ये 100 मार्क्स आपके बनाएगा, जो है आपका 50-50 रहेगा. ठीक है, 50 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, 50 आपका क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द इंटरव्यू. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द इंटरव्यू. वही जो एस्पिरेंट्स है उनको शॉर्टलिस्ट करा जाता है बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ मार्क्स दैट इज ऑब्टेन्ड इन योर फेज 2. इट मींस योर पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 के मार्क्स जो है उनका एग्रीगेट करके जो लोग इस स्टेज को पार करते हैं, दोज एस्पिरेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. ठीक है, अब इंटरव्यू के मार्क्स की बात करूं तो इसमें 75 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के रहते हैं. ठीक है, नाउ आई विल टॉक अबाउट द नोटिफिकेशन एंड व्हेन दिस पर्टिकुलर पेपर हैपन. सो यू कैन सी कि नोटिफिकेशन जो है सॉरी जो नोटिफिकेशन है
वो डिपेंड करता है इंटायरली साइकिल के ऊपर। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ मई जून जो है इसके आसपास, जून जुलाई, मतलब बेसिकली वी आर टेकिंग अ पीरियड ऑफ जून से लेके अगस्त के बीच में, जून से लेके अगस्त के बीच में जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट 2025, जून जुलाई से अगस्त के बीच में जो फेज 1 है वो देखने को मिल सकता है। अगस्त से लेके सितंबर के बीच में फेज 2 जो है वो हो जाएगा। इंटरव्यू जो डेट है ये आपकी अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच बीच में हो जाएगी। दीज आर द एक्सपेक्टेड डेट्स, ठीक है, दीज आर द एक्सपेक्टेड dates. Now we'll talk about the eligibility. So you can see here कि एक तो कैंडिडेट को क्या है, एक तो 21 साल की उम्र जो है वो उसको मतलब अटेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, इट मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 30 years ऑन अ स्पेसिफिक डेट मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, ठीक है, एंड रिलैक्सेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द आई वुड से कैटेगरीज इज प्रोवाइडेड हियर। नाउ वील टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी हियर। सो यू कैन सी कि ग्रेजुएशन जो है, किसी भी डिसिप्लिन में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इक्विवेलेंट टेक्निकल एंड योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, 50% इज फॉर SC/ST, रिलैक्सेशन इज प्रोवाइडेड हियर। नेक्स्ट, और या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तब भी होगा, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो सिंपल होनी चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 55% ऑफ मार्क्स, ठीक है। दिस इज व्हाट इज प्रोवाइडेड हियर। नाउ विल सी द कट ऑफ, ठीक है, कितनी जो है वो कट ऑफ बेसिकली गई है। सो इफ आई टॉक अबाउट फेज 1 दैट कंटेन्स 200 मार्क्स, वी विल सी 23 से 54.25 जो है यहाँ पे कट ऑफ गई है। जो क्वेश्चंस या फिर अगर आई टॉक अबाउट द पर्टिकुलर मार्क्स, सो इट रिमेन्स एट 200, जो हमारा फेज 1 है उसके 200 मार्क्स रहते हैं, बट जो कट ऑफ है इसमें यहाँ पे 54 समथिंग गई है। सो यू कैन सी द लेवल हियर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट 2022, सो 63.75 जो है यहाँ पे गई है। नाउ यू सी अ ड्रास्टिक चेंज है, 24 में 67.25 गई है यहाँ पे। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन वेरी बेटर वे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट 2021, यू कैन सी द डिफरेंस हियर, ठीक है। अगेन इफ आई टॉक अबाउट फेज 2, सो यहाँ पे 169 समथिंग गई है यहाँ पे हमारे फेज 2 की, जिसमें हमारे 300 मार्क्स रहते हैं। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट 2022, सो यहाँ पे गई है कितनी, 171। सो अगेन जो हमारा फेज 2 है दैट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट ओनली यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको तभी अपेयर होने देंगे अगर इफ यू क्लियर द सेक्शनल एज वेल एज योर टोटल कट ऑफ इन फेज 2, ठीक है। नाउ विल सी द ओवरऑल कट ऑफ, दिस मेक्स 375 मार्क्स इंक्लूडिंग योर इंटरव्यू एज वेल। सो 229 मार्क्स जो है वो कट ऑफ गया था हमारा 2023 में। सिमिलरली 234.50 जो है हमारा कट ऑफ गया था 2022 में। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी वेल, ठीक है। नाउ वील सी द सिलेबस। सो स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट ESIS, यू कैन सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज देयर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स योर वेरियस ऑफ द थिंग्स, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एज वेल। सो नेशनल इनकम हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, वेरियस स्टेजेस हो गए, ठीक है। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट डेवलपमेंट, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द वेलफेयर स्कीम्स एज वेल, because development includes both of your numbers as well as your ESI issues as well, matlab your economic issues as well as your social issues as well, and social issues as well. And what are the steps that has been taken by the government of India to solve those issues, that will be a part of your growth and development. Similarly if I talk about the Indian economy, so historical perspective rahega, globalization kaise aayi, LPG reforms isme rahenge, rest everything that is there in our Indian economy. Now Indian economy jo hai wo, Indian economy it means hum apni economy की सारी activities की बात कर रहे हैं, चाहे नेशनल इनकम हो गया, हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है ना, कैसे प्राइवेटाइजेशन आया, कैसे ग्लोबलाइजेशन आया, कैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में हम बूस्ट कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर कैसे आया, व्हाट इज मनी, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज इन्फ्लेशन. सो ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Similarly, if I talk about globalization, it means हम क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो है ही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी है ही है, ट्रेड भी है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन विल इंक्लूड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल. नाउ यू हैव सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया. It means we are talking about multiculturalism, demographic trends, urbanization, migration and your gender issues, social justice as well. So यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, social issues की, जितनी भी हमारी जो society में जो issues हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. Now I'll talk about English phase 2. So paper on English shall be framed in a manner to access the writing skills including your expression and understanding of the topic. Now probation, or I would say the probable question type is, one is your essay writing, another one is your precis writing, another one is your reading of the comprehension. So these are the bifurcations that you will see here. Now if I talk about finance and management, so financial में क्या आएगा, finance में तो सबसे पहले आपका entire the entire money related institutes, जैसे आपका money हो गया, फिर आपका banking system हो गया, आपकी stock market हो गई, money market हो गई. So entirely जितनी भी activities हमारे finance के साथ related है वो इसके अंदर आएंगी, including your every bank. Next is your financial market. So primary and secondary market, money market हो गया, stock market हो गया, forex market हो गया, ठीक है, your bonds,
bonds, your equity, your treasury bills, functions हो गए, instruments हो गए, and these many topics will be included here. And if I talk about the general topics, ठीक है, so financial risk management हो गया, फिर उसके बाद ये जो ये हमारे जो अच्छे I would say जो हमारे finance के जो हमारे terminologies हैं, tough terminologies हैं that of finance, जैसे हमारा balance sheet हो गया, equity हो गया, bonds हो गया, treasury bills हो गया, ठीक है, bonds हो गया, so ये सारी जो चीज़ें हैं वो include होंगी आपकी general topics के अंदर, ठीक है ना. WPI, CPI ये क्या है, हमारे inflation से related है, so these many topics will be asked to you. Similarly, if I talk about fundamentals of management and your organizational behavior, so यहाँ पे आपका कुछ current affairs oriented तो नहीं रहेगा, but you have to cover the syllabus only. So introduction to management, evolution इसकी कैसे हुई, scientific and administrative issues इसके, human relations, system approach of management, management functions, managerial role, nudge theory. So ये यहाँ पे क्या रहेगा आपका entirely आपका रहेगा जो आपका आपका जो conceptual clarity है, basically आपको सिर्फ उतना ही यहाँ पे करना है, ठीक है. Now if I talk about the fundamentals of management, तो fundamentals of management पे आपका leadership आएगा, ठीक है, interpersonal आपकी जो skill relationships होंगे वो आएंगे, ठीक है. Next, whatever is the theory or the plans that have been given by the various I would say various people, so यहाँ पे वो सारी जो चीजें हैं वो पूछी जाएंगी, ठीक है. Now we will talk about the ethics at the workplace and your corporate governance. So in it a lot of things will be asked to you. For example, if I talk about the meaning of ethics, code of conduct क्या होता है, moral issues in the businesses, ethics in compliance, finance, human resource, marketing, ethical principles, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन दी एथिक्स प्रोग्राम, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट एक्सेट्रा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी होती है, फैक्टर्स कौन कौन से जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं, मैकेनिज्म क्या क्या है, कम्युनिकेशन क्या क्या है, स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन चैलेंज कैसे होता है, अलग अलग कम्युनिकेशन टाइप्स क्या है, तो ये सारे बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन के, रोल ऑफ आईटी इन इन दिस पर्टिकुलर थिंग, सो ये सारी चीजें जो है वो इस पर्टिकुलर चीज में पूछी जाएंगी, ठीक है. नाउ वी हैव लॉन्च्ड अ स्पेशल फीचर ऑन आवर प्लेटफॉर्म एज वेल, नोट्स प्लस करके जो है हमने ये जो इनिशिएटिव है ये लिया है, जस्ट टू सिंप्लीफाई आवर नोट्स, जस्ट टू मेक आवर नोट्स मोर अट्रैक्टिव इन मैनर, ठीक है. तो यहाँ पे आप जो एक इंटरफेस जो है यहाँ पे जो प्रोवाइड करा गया है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो है हम करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वी हैव हाईलाइटेड इट, ठीक है. यू कैन ऐड कमेंट्स हियर, यू कैन ऐड रेफरल लेटर, ठीक है. सिमिलरली डार्क मोड इज ऑल्सो देयर, दैट इज प्रोवाइडेड टू यू फॉर मैक्सिमम for ensuring your maximum eye comfort. Similarly, you can have an access of your audio notes for the faster revision. So this is the new version of our app. Now we'll see the trend analysis. So phase 2 की अगर मैं बात करूँ, so you can see कि हमारा जो हमारा जो phase 2 है, यहाँ पे अगर मैं 2023 की बात करूँ, so यहाँ पे 28 questions have been asked from government schemes only, ठीक है, 28 questions, not even less, 28 questions have been asked from government schemes. So government schemes हो गया, जो RBI की हमारी reports हो गई हैं वो हो गई, ठीक है. फिर उसके बाद if I talk about reports and indices, that should be there, ठीक है. रेस्ट जो स्टैटिक पोर्शन है जो कि हम रेगुलरली जो है हम पढ़ते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, आई नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू कंबाइन इट विद करंट अफेयर्स. सो दिस इज वेरी वेरी श्योर फ्रॉम दिस थिंग कि आपको करंट अफेयर्स जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ने. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बजट से, सर्वे से, अदर्स ऑल्सो. इवन इफ आई टॉक अबाउट 2022, सो यहाँ पे 28 पूछे गए थे, यहाँ पे तो बिल्कुल ही ज्यादा, यहाँ पे 31 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स ओनली, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, एग्रीमेंट्स, समिट्स एंड अदर्स. Similarly, if I talk about 2021, so you can see 23 questions were asked from government schemes. So government scheme is the one which you cannot miss out. Now we'll talk about the important chapters of ESI. So one is the international economic institutes. Another I told you कि current affairs में आपको जो government schemes है वो बिल्कुल नहीं छोड़नी है. Similarly आपको reports and indices भी बिल्कुल नहीं छोड़नी है. Next is the measurement of growth, monetary policy is there, sustainable development is there, fiscal policy, inflation, balance of payment. That are the important steps of our economy. Next we'll talk about the FM. So you can see 2023 में 24 questions किससे पूछे गए थे, मैनेजमेंट से. नेक्स्ट फाइनेंस की जो करंट अफेयर्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस की कोई भी न्यूज आती है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली जो फाइनेंस की स्टैटिस्टिक्स हैं एंड योर RBI सर्कुलर्स, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सिमिलरली इफ आई सी द ट्रेंड ऑफ 2022, सो यू कैन सी 24 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम मैनेजमेंट, ठीक है. यहाँ पे भी हमने क्या देखा था, मैनेजमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, उससे कम किस में आए थे, हमारे फाइनेंस में, फाइनेंस की स्टैटिस्टिक्स एंड योर RBI सर्कुलर. सो RBI सर्कुलर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना. तो सॉरी Similar is the case with 2021 as well. मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे करंट जो अफेयर्स हैं हमारे फाइनेंस के.
उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन उसमें से भी आते हैं, ठीक है। आरबीआई सर्कुलर्स को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नाउ व्हाट आर द मेजर टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस? सो वन इज योर फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेरिवेटिव बॉन्ड्स, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इकोनॉमिक, योर इनकम स्टेटमेंट एंड योर बैलेंस शीट, primary and secondary market, risk management, inflation, cash flow, ratios. Now it is a part of your ESI, sorry, finance or your inflation is a part of your ESI also. RBI के functions भी ESI में पूछे जाते हैं, fiscal policy institution, financial institution भी किसमें पूछे जाते हैं, हमारे ESI subject में पूछे जाते हैं, ठीक है। Now we'll talk about the management. So सबसे पहले important chapter कौन सा है? Ethics, leadership, general management, communication, personality and perception, organization change and reinforcement, conflict, motivation, communication, intelligence, emotional intelligence, corporate governance. These are many the important chapters of your मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ हाउ डज एक ऑलिव बोर्ड स्टैंड हियर? सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ट्रस्ट लोग क्यों करते हैं कि सबसे पहले तो अच्छे से आपको जो प्रिपरेशन है वो करवाई जाती है। इफ आई टॉक अबाउट टेस्ट, दैट इज वेरी आउटस्टैंडिंग इन नेचर। आपको टेस्ट जो है वो इस तरीके से आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं सो योर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी क्लियर्ड। इफ यू सी दिस रिजल्ट ऑल्सो, सो हमारे जो द कंपाइलेशन वी प्रोवाइड टू ऑल ऑफ यू, द करंट अफेयर्स दैट वी कंपेयर वी प्रिपेयर एंड द स्कीम्स दैट वी प्रोवाइड, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो है वो ऑलमोस्ट होती है। सो ऑफकोर्स करंट अफेयर्स जो है वो आपको जो एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, so they will entirely focus on the what is currently going on, and we ensure this thing कि जो भी current affairs में जो भी recent चीज चल रही है, we ensure this thing कि that is entirely और comprehensively covered by us, so that जो बच्चा है उसको हर एक चीज का पता लगे, उसको हर एक स्कीम का पता लगे, उसका टेस्ट भी प्रॉपर वे से हो, so that that particular person cannot face any of the problem in the examination. Now we have most of the mentorship programs as well, wherein you can interact with our topper, or I would say the one who is already working in the RBI, and the one who has topped here AIR 1 से हम आपकी 1-to-1 mentorship भी करवाते हैं, so that he can guide you on a better way, कि आपको प्रॉपर बताया जाए कि यहाँ पे वर्किंग कल्चर कैसा है, कैसे आप ये रिसोर्सेज फॉलो करके आप ही मेरी तरह आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव बेनिफिट। सबसे पहले जो 1-to-1 मेंटरशिप है वो प्रोवाइड करी जाती है। स्टडी ग्रुप गाइडेड बाय द AIR 1, ये भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। कस्टमाइज स्टडी प्लान आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, एंड इट इज वेरी इंश्योर कि आपका जो प्रोग्रेस ट्रैकिंग है वो प्रॉपर होती रहे। इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाई जाती है आपको एक्स RBI ऑफिसर्स के द्वारा, सो जिन्होंने पहले ही उस एग्जाम को क्रैक कर रखा है, हु इज ऑलरेडी सिटिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। No one else can provide you better about that field because that particular person has already worked here, ठीक है। Now we also ensure the mentorship that is provided to you ensure that what to study, how to study and where to study. So this is the entire focus here, ठीक है। So complete course is there, you can of course enroll in it and you can join it. Now comparing it with the rest of the structure, so you can see the the difference here. Of course you can think of it and you can join it, ठीक है। Now we have rest of the batches as well, of course you can enroll in it and join here as well. So this is the entire video of how RBI, how you have to prepare for RBI, what are the benefits, facilities that RBI provides to you, ठीक है। सो जब इतना ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जब इतना ज़्यादा पर्सनल सिक्योरिटी है, सो वाई वुड यू नॉट इवन प्रिपेयर फॉर इट। हार्डवर्क करने में तो कोई भी जो है वो चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, सिंस अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड हियर, एंड इवन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग हियर तो एक बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड जॉब भी हो जाती है कि माई गर्ल और आई वुड से माई बॉय इज़ वर्किंग इन एज एन ऑफिसर इन RBI, सो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. So of course I have provided you a complete guide. If you're a very serious candidate, of course you can start preparing for it. If you want our help, we are here for you. And of course again, अगर आप बहुत सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, इस एग्जाम को लेके, तो अगर आप प्रिपरेशन भी एकदम अच्छे वे से करते हैं, सो ऑफ कोर्स यू टू विल बी एबल टू क्रैक इट, एंड इफ यू वांट एनी ऑफ आवर हेल्प, ऑफ कोर्स वी आर हियर टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच. आई होप एवरीथिंग अबाउट द RBI Grade B examination is clear to everyone. Thank you so much.